हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सीजन फिनाले ऑफ अंडर की बात। अब जितना स्पेशल ये एपिसोड है उतनी ही स्पेशल आज की हमारी गेस्ट है। ये एक प्लेबैक सिंगर है। नॉट दैट लॉन्ग अगो शी स्टार्टेड ऑफ हर करियर अ फ्यू इयर्स बैक विद द फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया एंड देन शी गेव हर वॉइस इन द फिल्म मणिकर्णिका। एंड राइट नाउ वन ऑफ हर करंट हिट्स इज फ्रॉम द वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स, जहां एक तरफ रहमान साहब ये बोलते हैं कि यंग सिंगर्स में ये इनकी वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ गुलजार साहब इनकी गजल गायकी सुन के ये कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में म्यूजिक जिंदा है तो इनकी तरह के सिंगर्स की वजह से है और आगे भी रहेगा। वेल, शी इज माई वेरी वेरी डियर फ्रेंड एंड एन एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन फॉर मी। प्लीज वेलकम प्रतिभा सिंह बघेल एवरीबॉडी। अभी हम एपिसोड शुरू नहीं करेंगे एक्चुअली, क्योंकि हमारा आखिरी एपिसोड है, तो हमें लगा कि क्यों ना आज हम आपको उन लोगों से भी मिलवाएं जिनकी वजह से ये सीजन, ये पूरा शो बन पाया, द पीपल बिहाइंड द सीन्स। So let's go and meet them. All right, ladies and gentlemen, so here we have the whole team of Andar Ki Baat with us. Round of applause for the audience and for the team, everyone. Go on. Give me claps, everybody. Give me claps. Yes. Okay. Quick introduction for everybody who's with us. So today we have with us our creative producer Deepak Sharma. Deepak Sharma. Hi guys, how are you? I hope you all have subscribed our channel. Subscribe. Very nice. Producer selling the show. And here we have our executive producer Gaurav Sahai, everybody. Hello Gaurav. Hey guys, do press the bell icon. Yeah, very nice. Producers are still selling the show. Very good. Going on. Now, two very important people for the show. We have Nalin Vinayak with us. He's the music behind the show, the person who's given us original music for our credits. Hi Nalin, welcome to the show. Hi, how are you guys? Wait, can we do this again? What am I supposed to say? I thought we would start with Sachin, man. Dude, it's just just say hi to the audiences. That's all. Yeah, that is it. You just need to say hi to the audience. Hi to the audience. Big hello to the audience. Please become a bigger, better audience, I guess. Okay, that works. Nice. And we have one person who's worked very, very hard on the show. In fact, he's worked so hard, he's still working. We have Sachin with us. Sachin is on another work call while he's here to say hi to our audience. So Sachin, jaldi se hi bol de yaar. और फिर तू जा. Hello, hi everyone. Hello. Bye cutie. Okay. जा. ठीक है, जा. Okay. And then yes, the drama director of the show, the one who keeps interrupting this little meeting. Hi Sukmani, say hi to our audience. Hi everyone, hello. Good to see you all. Well, good to see who? Us or the audience? Who can you see? You say hi to the who can you see? I'm saying hi to all of you. I'm happy to see all of you. क्या problem है? चलो अब audience, now to the audience. Dude, one second. हाँ. What is happening, guys? Sorry. जाओ. और शोर मत करना, आवाज मत करना बिल्कुल. This is by far the most fun we had. Sorry guys, sorry. Just I'm running the household also. I'm so sorry. Okay. Yes, ready. So hi. Hi, hello to our lovely audience. This is Sukmini here. Nice. After so long, this is what you say. Very nice. Chalo, anyway, there's one member of the team that's missing right now. That's Pragati. Pragati is somebody who does multiple character. अगर आपने हमारे पिछले episodes देखे हैं तो उसमें वो कभी चंचल आंटी, कभी रज्जो बुआ, कभी डिस्लेक्सा बन के आती हैं. Today she is busy. By the way, Pragati बहुत busy है क्योंकि while the show was happening, उसी दौरान उनकी life में उनके Prince Charming भी आ गए. She just got married, so she's I think busy with her better half. Hopefully we'll have a picture on screen showing you what she's doing now. And off she goes. All right, everyone, this was our team, and enjoy the rest of the show. See you next season. Bye team. Bye guys.
ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ आज के सिनेरियो के बारे में बता दूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड, फ्यूचर में लेजेंड बनने वाले, बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है। ये हुई मेरी बात। अब बात करते हैं प्रतिभा की। So, whatever I said, I think is for the guests that we have today. We have Pratibha Singh Baghel with us, everybody. Let's have a huge round of applause. Take applause, take applause, take audience, take applause. Yes, okay. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक्स सुशांत। सबसे पहले तो थैंक यू कि मैं तुम्हारे शो पे आई हूँ। Of course. एंड जो भी तुमने इसके पहले कहा वो हम दोनों के लिए ठीक बात है। बन जाएंगे थोड़े दिन में। क्या बात है यार, क्या बात है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, सीधे चलते हैं हमारे मुद्दे की बात पे। पहला सेगमेंट, इसे हम बोलते हैं ये क्यों। प्रतिभा सिंह बघेल इज अ सिंगर एंड सबको पता है कमाल की सिंगर है, बट भाई सिंगर क्यों? इफ आई वाज नॉट द सिंगर तो मुझे कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि मुझ में सिंगिंग के अलावा कोई गुण नहीं है। तो मेरे अंदर और कोई टैलेंट नहीं है और हॉबीज बहुत सारी है, लेकिन यस म्यूजिक बचपन से, क्योंकि घर पे सब लोग बहुत अटैच्ड थे और तो सिंस आई वाज 3 आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड देन मेरे फैमिली वालों ने सबने ऑब्जर्व किया कि ये अच्छा गाती है, छोटी सी है अभी और अच्छा गाती है, तो चलो इसको करने दो। बट ऑनेस्टली मैं मेरी मॉम मुझे चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगी, प्लेबैक्स करूंगी या मैं दुनिया भर में घूमूंगी और इतने सारे लोग मुझे जानेंगे। आई यूज्ड टू थिंक कि मैं म्यूजिक की प्रोफेसर बनूंगी और उसी हिसाब से मैं पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। हाँ, और पर फिर मैंने मैथमेटिक्स लिया। जब हम 11th क्लास में वो हमारा चेंज ओवर होता है सब्जेक्ट्स का, तो मैंने मैथमेटिक्स लिया था बिकॉज आई वाज गुड इन स्टडीज। लेकिन फिर 12th क्लास में चेंज करना पड़ा बिकॉज आई यूज्ड टू गिव सो मच टाइम टू म्यूजिक that I couldn't do both together because music takes a lot of time and so is maths. So then I had to quit maths and then I went for music. Moving on to the next segment of the show, इसको हम बोलते हैं आमने सामने। हम क्या करते हैं, हम अपने व्यूअर्स हैं उनमें से एक लकी ड्रॉ करते हैं और एक व्यूअर को हैंड पिक करके शो पे बुलाते हैं टू मीट एज योर फैन। Yep. So if you allow, can I call them on? Can I call the guest on? Please. Awesome. Let us know ये कौन फैन है। अरे रज्जू जी, ओके, नमस्ते रज्जू जी, नमस्ते, वेलकम टू आवर शो अंदर की बात। रज्जू, हैं? बुआ कौन लगाएगा बे? बुआ? तुमने कहा था कि यहाँ लकी ड्रॉ में से कोई आने वाला है एंड बुआ जी फैमिली। एक्चुअली हमारे शो और कोई देखता तो है नहीं, फैमिली देखती है, तो दैट्स व्हाई लकी ड्रॉ करके इन्हीं को बुलाया। हेलो प्रतिभा बिटिया। हेलो बुआ जी। अच्छा बिटिया, अब हमारी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। देखो जी, हमारे कॉलोनी में एकदम मस्त नवरात्रि का बहुत बड़ा फंक्शन होता है अच्छा। और उसमें गाने का कंपटीशन होता है। तो हमने 2 और जज लोग से बात करके रखा है, एकदम महान कलाकार, एकदम गीतकार संगीतकार से बात करके रखा है जज बनने के लिए। तो मतलब अगर आप भी मतलब उसमें शामिल हो जाओ तो मतलब। एक सेकंड मैं जरा ये पूछ लूं, कौन से जज, कौन महान संगीतकार आपके पास आ गए बुआ जी? नोनू सिगम और मन्नू अलिक। ये कौन है? नोनू सिगम एंड मन्नू अलिक। हाँ मतलब इतने महान लोग हैं। सुशांत तुम तो कुछ नहीं जानते हो यार। प्रतिभा बिटिया देखो, अब बिटिया तुम आ गई है तो हम सोचते थे दोनों को मना कर दे और तुम कर दो हमारा जजमेंट। एक सेकंड, एक प्रतिभा एक सेकंड बुआ जी, आप ये क्या आपने फ्री का शुरू किया हुआ है काम? एक पिछले एपिसोड में आप आए थे, आपने वहां पे फ्री में गाना गवाया, अब वो उनसे आप फ्री में जजमेंट करवा रहे हैं बैठ के। आप जानते हो कौन है? पता है आपको कौन है वो? अरे हमको मालूम है भैया, बवाल सिंगर है ये, वॉइस ऑफ मणिकर्णिका, जानते हैं। अरे तो वॉइस ऑफ मणिकर्णिका है तो आप उनका टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है बुआ जी, आप इतना कह रहे हो तो मैं कर दूंगी। अरे थैंक यू बेटा। हाँ तो सुशांत बेटा, ये व्हाट्सएप पे जरा जाना जरा, और वीडियो क्लिप हमने डाल रखा है, जाके जरा उसको चेक करो, काम करो थोड़ा, चलो। ठीक है बुआ जी। नंबर 1 Sunday morning love you, Monday
कैसा लगा बिटिया? अच्छा है ना? बुआ जी मैं ये कहना चाह रही थी कि ये संडे मॉर्निंग ये जो हो रहा है ना, ये राइमिंग वाला जो गाना है, ये मैं अपने दीदी के बच्चों को भेज देती हूँ, उनको संडे मंडे हम लोग याद करा रहे थे, तो आई थिंक ये उसका काम जरूर कर देगा। समझ में आया बुआ जी? ऐसे तो सिंगर हैं आपके। क्लिप 2 बजाओ सुशांत, ज्यादा बात मत करो, ठीक है? बिटिया कैसा लगा? ये गाना सुनने के बाद मैं कोमा में जा चुकी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में। कोई बात नहीं। सुशांत तीसरा वाला बता ना। किताबों में ये लिखा नहीं कि फूलों में भी दिल होता है, किताबों में ये लिखा नहीं कि फूलों में भी दिल होता है, पर जिस तरह तू मिलती है किताबों पे मुझे शक होता है। बिटिया कैसा लगा? बुआ जी ये इतना बढ़िया था बुआ जी, कि मुझे लगता है अगले 7 जन्म में हंसूंगी ये देख देख कर। ये मेरे लिए आपने बहुत ही कमाल का आइटम भेज दिया है, मैं इसे दिन रात पूजा करूंगी इसकी। ये वाला जो इसका फील है ना, ये किताबों पे मुझे शक हमने तो होता है, गायकी के लिए मुझे बोला था, शक होता है ऊपर वाले के लिए कि ऐसे लोग भी गाना गाते हैं यार, क्यों? नेवर माइंड, एक और बजा दो यार, चलो एक चौथा। हाँ चौथा अभी बजाता हूँ बुआ जी, अभी बजाता हूँ। एक हाँ, सेकंड हाँ, एक अब सेकंड तो अभी हाँ, बजाता हूँ। एंड हाँ। यही होना चाहिए इनके साथ। तंग कर रखा है यार, हद हो गई है। सॉरी यार प्रतिभा, जस्ट यू हैड टू गो थ्रू ऑल दिस। हमारी बुआ जी का टेस्ट मतलब मानना पड़ेगा। अरे भैया बहुत कमाल टेस्ट है उनका। नाउ विल गो टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड गूगल वांट्स टू नो। So we went to Google and we asked him, बॉस तू बता तुझे क्या जानना है अबाउट प्रतिभा, एंड फिर उसने हमें एक चिट्ठा दिया। मेरे पास कुछ सवाल हैं, अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? एंड लेट्स सी गूगल की इंफॉर्मेशन का घड़ा आप भरती हैं या नहीं। हु इज योर रोल मॉडल? माय रोल मॉडल, ओके, in many segments there are other like people, but वैसे मेरी मदर है मेरी रोल मॉडल for everything in life. क्या बात है, that's a lovely answer. Yeah. अच्छा, आप इतना ज्यादा बाहर परफॉर्म कर रहे हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है अजीब सा या कुछ बड़ा फनी कोई मोमेंट हो गया हो लाइव परफॉर्म करते हुए कहीं, किसी जो मेमोरेबल? कुछ अभी याद, कुछ तो आया याद, आंख में कुछ तो आया था। यार पता है ये इससे जुड़ा हुआ किस्सा है, उमराव जान से जुड़ा हुआ किस्सा है। मैं अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए, मतलब वो मेरा बहुत बड़ा इंडियन क्लासिकल कॉन्सर्ट था जोधपुर में, विद लॉट ऑफ वेरी रेस्पेक्टेड आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री। तो हम सब का एक जोधपुर में कॉन्सर्ट था, और वहां से पता चला कि मुझे लद्दाख जाना है उमराव जान का ये वीडियो शूट करने के लिए, हमरा यहाँ आ रहे हैं। एंड वहाँ फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। देन आई हैड टू टेक अ ट्रेन, क्योंकि अभी देयर इज नो ऑप्शन। तो मैं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मुझे इतना याद नहीं रहा कि ट्रेन के नंबर्स जो होते हैं लिखे होते हैं, तो वो देखना चाहिए कई बार। तो मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई थी। आई डोंट नो, समहाउ आई गॉट दिस फीलिंग कि यार गलत ट्रेन लग रही है, खाली क्यों है इतनी, जब अभी 10 मिनट ही है जाने में, ये तो ट्रेन भरी हुई होनी चाहिए। तो थैंकफुली आई गॉट दिस पर्सन, जो वो अटेंडेंट होते हैं। मैं उसको पूछा, भैया ये ट्रेन दिल्ली जा रही है ना? तो बोलता, मैडम ये तो बीकानेर जा रही है। तो मैं उस ट्रेन से जल्दी से जंप करके उतर गई, और फिर मैंने वो जो ठेला वाला होते हैं उनको पूछा कि भैया दिल्ली वाली ट्रेन कौन सी है, बता दो। तो वो मुझे बोलता है, मैडम जल्दी से आप ये चढ़कर जाओ, अगली वाले प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन खड़ी है। I ran like how, and then I reached to Ladakh. Okay, going to the next part. Yeah. Now, if you had to open a show for someone, as a singer, if you had to open for someone. Okay, for someone, okay. Yeah, who would it be? पता नहीं ये कितना relevant लगेगा लोगों को, but I want to open for Celine Dion someday. क्या बात है, Celine Dion. हाँ.
Yeah, I love her. There was one more, yes, Whitney Houston, but she's no more now. Yeah, she's the one. But I wish someday I open for Celine Dion. क्या कमाल I की love बात है that you are a core classical singer and क्या पकड़ है आपकी, वो सबने देखा है, सबने सुना है, and yet you say that you would like to open for somebody from the West because it's just the power of music that just gets. Yeah, power of music. Music has the power to do anything, to heal anything. It has such the power that can't be described. That's true, very true. Next part पे मैं चलता हूँ. Okay. Now मुझे पता है कि आपको, एंड ये तो महारत है आपकी, गुलजार साहब ने खुद अपने मुंह से भी आपकी तारीफ की हुई है कि ऐसे लोगों की वजह से संगीत इंडस्ट्री में जिंदा है और आगे बढ़ेगा. Wow. तो प्रतिभा, व्हाट डू यू लाइक मोर? एक गजल गाते हुए पंगत जो बैठती है, बैठक होती है कि लोग बैठ के प्यार से सुन रहे हैं और आप बहुत बढ़िया तरीके से गा रहे हैं, या फिर आपको वो जो स्टेज में जो एक्सिलरेटिंग एक्साइटमेंट वाला जो रॉक कॉन्सर्ट सॉर्ट ऑफ मोड होता है कि आप गए और आपने अपना हाथ उठाया, सबने हाथ उठाया, और ये तो व्हाट डू यू लाइक मोर, व्हाट डू यू प्रेफर मोर? Wow, this is a very, very, very tricky question. Yeah. क्योंकि मुझे याद है I used to perform Bollywood. I do perform Bollywood a lot, and see, both have different things which are very important for any artist. जैसे जो मैं गजलें गाती हूँ या ठुमरीज, जो मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं, वहां पर लोग आपको सिर्फ सुनने के लिए आते हैं. लाइक दे आर हार्डकोर प्योर म्यूजिक लवर्स. तो उनकी अप्रिसिएशन वहां पर बहुत ज्यादा लोग कभी भी नहीं होते हैं. जैसे गजल के कॉन्सर्ट में आप सोचो कि प्रोबेबली एक एस्प्लेनेड हॉल होगा या दुबई ओपेरा होगा, जो कि बहुत जैसे एनसीपी अपना भाभा थिएटर जहां पर हमने उमराव जान किया था, तो ऐसी बहुत ही सीमित ऑडियंस होती है जो कि हार्डकोर म्यूजिक लवर्स होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमारे सिंगिंग के लिए आते हैं, मेरी स्किल्स को अप्रिसिएशन करने आते हैं. बट आई लव दैट थिंग जो तुमने बोला ना कि आई हैव सीन इट, आई हैव फेस्ड इट. एक दो कॉलेजेस में ऐसा हुआ था. मैं देहरादून की कॉलेज में परफॉर्म करने गई थी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट क्राउड कि वो जब आप स्टेज पे आए भी नहीं हो, लाइक जस्ट मेरा नाम अनाउंस हुआ है एंड पीपल हैव स्टार्टेड शाउटिंग प्रतिभा प्रतिभा, एंड आई वाज फीलिंग लाइक द क्वीन. सो बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कॉलेज शोज या ऐसे पब्लिक शोज में क्या होता है कि दे कम टू सी यू एज अ परफॉर्मर. लाइक यू हैव टू एंटरटेन देम. Like they want to dance, they want to cheer you up, they want to have all kind of dance numbers, and it has to be fun. But in Indian classical world it is different. People come to listen to you. That's true. Very true, very true. So basically आप दोनों enjoy करते हो, और हम as cheap as we get, you will not give one answer. No. अच्छा, अब घर में हो, सिंगर है, रियाज तो होगा ही. कभी ऐसा हुआ है किसी पड़ोसी ने आके या किसी ने आके, मतलब कभी होता है ना रेपिटेटिवली कुछ परेशान करते रियाज के मौके पे, या कभी कोई ऐसा कोई किस्सा है रियाज का? हाँ, यहाँ का तो नहीं है, मुंबई का तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत काफी बड़ा घर है, तो बाहर वालों तक आवाज जाती भी होगी, तो वो ऐसे आते नहीं है घर पे. एंड सिंस इट्स लॉकडाउन तो ऐसे कोई आ ही नहीं सकता है. लेकिन मुंबई में आई रिमेम्बर मेरे घर के नीचे एक आंटी रहती थी, तो जब मैं अपने घर पे गाना गाती थी या रियाज करती थी लेट ना बेबी, तो वो मुझे दूसरे दिन जरूर बोलती थी, आज आप रियाज कर रहे थे ना, कल मेरे को बुलाना जब रियाज कर रहे हो. तो मैंने सोचा कि आंटी जब मैं गाऊंगी तब मैं आपको बुला सकती हूँ, पर रियाज करते वक्त मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ. क्योंकि रियाज करना इट्स सो, मतलब इट्स यू प्रैक्टिसिंग इट. मतलब आप चीजें गलत भी कर सकते हो, आप किसी के सामने कैसे नहा सकते हो, किसी के सामने कैसे चेंज कर सकते हो, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ राइट टू बी सीन. तो ये वही बात है कि अपने म्यूजिक को हम निखार रहे हैं, संवार रहे हैं, तब आपको नहीं दिखा सकते, आपको संवारने के बाद दिखाएंगे. Going to the next question. Now, इतने सारे सिंगर्स के साथ काम करते हो, परफॉर्म करते हो, कोई कभी बिना नाम लिए कोई ऐसा किस्सा जो याद आता हो कि यार ये क्या वाहियातपना किया है यार. अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसा कुछ देखा है और सुन भी लिया है, और उससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ, मतलब, और उसका वीडियो देखने के बाद तो मैं और भी ज्यादा आहत हूँ. मैं तुम्हें इस वीडियो इस
इंटरव्यू के बाद मैं तुम्हें बता दूंगी मैं किसके बारे में बात कर रही थी। उसका हाँ। वीडियो ऐसा है, एक बहुत ही सैड गाना है समझो, उसपे हाँ। कोई ऐसे ऐसे एक्ट कर रहा है, अगर आंखों से जुड़ी हुई बात हो तो ऐसे ऐसे करेगा, आंखों को ऐसे दिखा रहा है, अच्छा। ऐसे दिल को ऐसे, मतलब इट्स लाइक अ बेबी पोएम की वो ए फॉर एप्पल, ओके। एप्पल बॉय, इट्स लाइक अ सिंग सॉन्ग एंड या सॉर्ट ऑफ थिंग। अंडरस्टूड। तो मैं इसको थोड़ा रिफाइन करता हूँ, कभी आमने सामने कुछ हुआ है? आमने सामने हाँ, यही कई चाहिए। सारे सिंगर्स कई सारे सिंगर्स ऐसे भी होते हैं जो हम मर जाते हैं मेहनत कर करके, कुछ लोग +1 पे गा देते हैं, सामने गा रहे हैं और लोग मतलब पागल हो रहे हैं, तो हमें हाँ, लगता है फिर से ओ। वही वाली बात आती है, मुझे मारो मुझे मारो। कि भैया हम यहाँ सुर भिड़ा रहे हैं अपना, बिल्कुल पूरी फुल हम यहाँ कंसंट्रेशन, मजा भी अगला है +1, सुर अरे लगाने में चलाओ ट्रैक। सुर लगाने में लगे हुए हैं कि कम से, एंड पीपल डू दिस, यू कांट बिलीव। वो तो चलो अपने गाने, कुछ सिंगर्स थोड़े सेंसिबल हैं, ये एकदम बुरे से अच्छा ये है कि वो खुद का गाकर रिकॉर्ड करके फिर उसपे +1 करते हैं। कुछ तो ऐसे भी निहायत सिंगर्स हैं जिनके बारे में मैं क्या बोलूं, मैं बुराई नहीं करती हूँ किसी की ज्यादा, बट मजा आ रहा है अभी। तो कुछ ऐसे भी सिंगर्स होते हैं जिनको इतनी भी समझ नहीं होती कि भाई अपनी आवाज तो डब कर लो, दूसरे वहाँ हनी सिंह ही गाए जा रहे हैं लेकिन वो अपनी आवाज में वहाँ +1 गा रहे हैं। What? मतलब इमेजिन मी सिंगिंग इन केके's वॉइस, लाइक अपनी कृष्णकली है समझो फॉर एग्जांपल, कि कृष्णकली का गाना है और मैं उसके गाने पे +1 गा रही हूँ, and people don't know it. मैंने कभी नहीं देखा ये। And even if they know and they're not saying anything and they are just enjoying. ओ भाई मुझे मारो। ओ भाई मुझे मारो। कभी कोई वियर्ड चीज की है किसी फैन ने? होता है ना, कभी कुछ अच्छा करने जा रहा था पर पता नहीं क्या वाहियात पना कर गया यार, कभी कुछ ऐसा हुआ है? वियर्ड ऐसे तो फैंस ने कभी कुछ किया नहीं, पर वो फूल वूल देना तो बहुत ही एक मेरा फैन मॉरिशस से आया था मुझसे शादी करने, मुझे याद है अभी तक। He came from Mauritius to Riva and he searched for my home. He went to my mom dad and he was like, I want to marry your daughter. So फिर उसको जेल वेल भेजा गया, थाने भेजा गया कि भाई इसको ले जाओ, मेरी बेटी की शादी तोड़वा देगा ये। अच्छा, oh, this is after you were married? After I got married, yes. Oh God. But this is so cool यार, लोग दूर दूर से आ रहे हैं शादी करने के लिए। मॉरिशस से बंदा है। मॉरिशस से बंदा आ गया, जब वहां से आई गया इतना सब कुछ पता कर ली तो ये भी पता कर लेता यार कि वो लड़की शादीशुदा है। That's true. That is true. Happily married है। ये ना मेरा पर्सनल सवाल है, ये एक बड़ा ही this is more for me more than the show. Interesting. Yeah, so क्या होता है, हम सब स्पेशली आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स, यू नो, वी एम टू one day do good work, do great work. And the best of the artists, I believe, their thing is not कि यार फेमस होना है, पैसा कमाना है, their thing is यार बहुत अच्छा काम करना है और जो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं ना इंडस्ट्री के, उनके साथ काम करना है, उनसे सीखना है। अब मुझे पता है प्रतिभा सिंह बघेल इज, अगेन मैं फिर से एक बड़ा नाम फेंकने वाला हूँ, इज इन टच विद AR रहमान। अब AR रहमान इंडिया से जाके बाहर काम करते हैं, ऑस्कर ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के अवार्ड्स है उनके पास, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन है। अब आप उनके साथ काम कर रहे हो, ये फीलिंग क्या है? व्हाट डू यू फील व्हेन ही कॉल्स, व्हेन यू टॉक टू हिम एंड व्हेन यू वर्क विद हिम? वो कोई झंझनाहट होती है शरीर में? क्या होता है यार जब पहुंच जाते हो वहां पे? हुई थी पहली बार, उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है एंड एज यूजुअल जैसे मैं फोन को लेके बहुत लेजी हूँ, मतलब देर रिप्लाई करना, मैसेजेस देखना ही नहीं, वो हमें पता है, बड़ी मुश्किल से हुआ इंटरव्यू। तो इसी तरह उनका मैसेज आए हुए कुछ 4 घंटे हो गए थे एंड देन I saw the message and then so on and so forth. I spoke to him. उनका अचानक, मुझे पता नहीं था कि मुझे रहमान सर का वीडियो कॉल आ जाएगा, फेस टाइम। तो मैं एकदम उस दिन मैंने घर का पूरा काम किया था, लॉकडाउन तब शुरू ही, घर का पूरा काम करके थक हार के मैं एकदम बेहाल होकर, एकदम कुछ मतलब एकदम वो गंदे से कपड़े पहनकर मैं थोड़ी लेटी थी और तभी मैं देख रही हूँ फोन पे कि मैंने सर को एक रिमाइंडर मैसेज भेजा, सर लेट मी नो इफ आई कैन कॉल यू पोस्ट 10 मिनट्स। उनका फोन आ गया मुझे, घर की सारी लाइट्स बंद हैं, 7 बजे हुए हैं शाम के,
सारी हाँ, लाइट्स ठीक बंद बात। है, मैंने यहाँ पर इतना बड़ा जूड़ा बनाया हुआ है गंदा सा, तो मैं एक हाथ से जूड़ा खोल रही हूँ, एक हाथ से लाइटें जला रही हूँ, और जस्ट टू बिलीव दैट मैंने वो जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा काम किया, मुझे बड़ा चीप लग रहा था, लेकिन हाँ। मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया कि मुझे यकीन करना है कि ये गलती से तो नहीं रहमान सर ने मुझे वीडियो कॉल कर दिया। तो एंड देन सर, मतलब फिर मैंने उनसे बात की और मैंने रहा ही नहीं गया, मैंने उनको बात करने के लास्ट में उनको बता दिया कि सर एक बात तो मैं शायद अभी बोले बिना रह नहीं पाऊंगी, दैट इट्स अनबिलीवेबल दैट यू फील, and so he was very humble and he was very modest कि नहीं I should call you guys and you guys are doing fantastic thing and I love your singing stuff, मुझे इतनी blessings दी उन्होंने। and अभी क्या भी बात है। रीवा आने के बाद भी एक दो बार उनसे बात हुई कुछ काम के सिलसिले में। it's incredible feeling, I think I need nothing more, you know, this is success for me, this is success, what is success, एग्जैक्टली। मतलब या इतने बड़े बड़े लोग, अगर जो लोग म्यूजिक के महारथी हैं, I always wanted to work with these people जिनके साथ मैं आज कर रही हूँ, चाहे वो राइट। रहमान सर हैं, शंकर जी हैं, सलीम सुलेमान सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में मैंने काम किया है ऑलरेडी। गुलजार साहब के साथ में कुछ प्रोजेक्ट हो रही है, देन मनोज मुंतशिर साहब के साथ में हो रही है, एंड you I think I have got the blessings, जाकिर हुसैन साहब के साथ में मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ, what else do I need, I think I'm blessed, and आज मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई गम नहीं है कि मुझे कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, आई एम वेरी ब्लेस्ड। यू नो इतना लंबा, मैं नहीं बोलूंगा टाइम वाइज, बट आई थिंक इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू हैव गॉन फ्रॉम आई डोंट नो वेयर टू वेयर। रीवा की लड़की है, आज की डेट में रहमान साहब के साथ वीडियो कॉल पे वो बोल रहे हैं मुझे काम करना है, वो रीवा कॉल कर देते हैं, सब हो रहा है। हस्बैंड का इस पूरी जो सक्सेस है उसका कितना परसेंटेज वुड यू गिव टू योर हस्बैंड? आई थिंक आई वुड गिव 90% to him, as a not only as a husband, but he was always this liberal person that I had in my life. It's been now 7 years of marriage and 2.5 years of our courtship, तो मतलब almost 10 years हो गए अभी, and he was always been there, मतलब मेरे mom dad तो है ही, in fact my in-laws, like all the family members, I never feel that मेरी शादी हो गई तो अभी ये भी, मतलब जिम्मेदारी आपको खुद से ही होती है किसी चीज की, but I never got anything from them कि तुम ये करना चाहिए या तुम ये ऐसा करना है। I live in Mumbai, I give less time to my in-laws, and I don't get time to be here more. So now I am here and everybody is so happy. Still I am working. See, मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी, ऐसे ही मेरी काफी सारी चीजें होती रहती हैं, live sessions होते रहते हैं, but they are always so encouraging, and I think my husband is a brilliant guy to be with in every aspect of life. I think nobody could have been better than him. He was never like this कि वो बीवी खाना बनाए, अरे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं कि अरे तुम्हारे हाथ का ही खाना बना हुआ मुझे अच्छा लगता है, या कभी कपड़े धोना हो या बर्तन धोना, he was always like this कि यार ये कपड़े और बर्तन ये तो दूसरों का काम होता है, तुम्हारा जो काम है मेरे साथ बैठकर खाना, तुम वो क्या करो। He always wanted a girl who was deeply into something, मतलब अपना पैशन फॉलो करती हो, so I think he's very lucky to have me. ओह एंड में प्रतिभा हो गई। बिफोर वी रैप एवरीथिंग अप, ये मुझे लगता है अगर मैंने ये किया ना, दिस विल बी चीटिंग विद ऑल द पीपल इन द टीम, द 5 of us and the audience, so I can't go. एक गाना, बिकॉज देखो वो तो जरूरी है वरना शो कैसे बिकेगा, प्रोमो में क्या डालूं मैं, अपनी शक्ल तो मैं डाल नहीं सकता। I need real talent. Okay, I think I'll sing this song. I like this song very much. मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसा जीना मेरा हुण हैरा की वे करा तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तो दिल तो यूं जान मेरी
मैं तनु समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि। Thank you. Oh, okay, ladies and gentlemen, this was fantastic. मेरे पास अब बोलने को कुछ नहीं है सिवाय thank you so much for coming on the show and singing for us. And with that only, I would like to conclude, ladies and gentlemen. We had Pratibha Singh Baghel with us, and Thank please you. stay I'd tuned. like to thank Sushant. You I know very very personally now. हम इतने सालों से काम कर रहे हैं साथ में. But Gaurav, Deepak, Rajo Bua, Pragati, and Sukhmani. Thank you so much everybody for having me, and it was great to talk to you all.